Good afternoon, students. Today we'll be starting with the first chapter of Computer Science paper 2. We already completed the second chapter, that is Logic Gate and Sequential Circuits. So let us start with the first chapter, Electronic Component. Okay, here you can see a PCB on there. There are many components mounted on this PCB, right? Resistors है, capacitors है, पॉट है, ICs है, सेंसर है, राइट. देन यहाँ पे एक कनेक्टर है, ट्रांजिस्टर है. दिस ऑल आर न्यू फॉर यू. ओके, सो लेट अस सी ईच कंपोनेंट, उनका फंक्शन क्या है, उन कहाँ, what are they use, कहाँ पे कौन सा यूज़ करना चाहिए कंपोनेंट, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. Now next, electronic component is classified into two: passive components and active components. Passive components, and in any circuit we require both active component as well as passive components. Without that a circuit cannot be constructed. Let us see what is the function of passive components, what is the function of active components. Here you can see many components. Now you are not able to identify ये क्या है, right? ये कौन सा component है, ये कौन सा component है. Now you are not enabled. Once you study you will know which this component are. So let us see what do you mean by passive component, or what is the function of passive components. Passive components are those components which do not have the capacity to amplify the voltage or to rectify the supply. What do you mean by amplify? Amplify का meaning क्या है? To increase the voltage, right? अगर मैं अभी बात कर रही हूँ बट मेरा आवाज़ नॉट सफिशेंट, वॉल्यूम ज़्यादा नहीं है, बट इट शुड बी लाउडर, तो मैं क्या यूज़ करूँगी? माइक. व्हाट डज अ माइक डू? Mic amplifies my voice, right? So that is amplification. But the passive component doesn't have the ability to amplify the voltage or current, right? Then what is the ability of the passive components? Yes, to limit the current, to keep the current constant, to store the energy. This is a function of passive component. And to rectify the supply. What the rectify means? To convert AC to DC. That is a rectify. Okay, we have AC at the home, and to convert into DC we require the passive, that is called as rectification. Therefore they are called as passive components. So what are the passive components? Passive components does not have the capacity to amplify the voltage or to rectify the supply. Therefore they are called as passive components. Example: resistors, capacitor and inductor. Now these passive components, each component we are going to see in detail. Already in 10th standard you have studied about resistor, right? Resistor का unit क्या है, how they are connected, resistor connected in series, resistor connected in parallel, and you have done the practical based on that in 10th standard. So let us see now active component. What is active component? Active component are those components which are capable of performing active function like amplification, rectification and switching, right? On and off करना है, करंट पास करना है कि नहीं करना है, सर्किट कितना करना है, that all is done by this active components. So what is the definition? What is the capacity? These components are capable of performing active functions like amplification, rectification and switching. They are called as active components. So let us see example. There are many example. I have listed the few of them over here. So diode, LED, transistor. पहले तो vacuum tube भी था, then gas filled tube, right? So electron tube was also the active components. So active components में gas filled tube, vacuum tube, semiconductor में transistor, diode, LED, these all are active components. Example. ठीक है. Now next, passive components we'll study in detail and then we'll go for active components. Passive components are classified are three types: resistor, capacitors and inductor, right? Capacitor, inductor and resistor.
कौन से है पैसिव कंपोनेंट्स? रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर. नाउ लेट अस सी रेजिस्टर. वी विल स्टडी वन बाय वन. उनका क्या है क्लासिफिकेशन, उनका फंक्शन क्या है, उनके टाइप्स क्या है, और वी गोइंग टू स्टडी इन डिटेल दिस पैसिव कंपोनेंट्स. नाउ रेजिस्टर, already studied resistor. The name itself studied is resist. It resists what? It limits the current, or it resists the flow of current. So resistor is a passive component. And what is the function of this passive component? With the primary function to limit the current. इसका क्या है function? To limit the current flow of electric current. अगर आपको सर्किट में से कोई भी सर्किट हो, उसमें से करंट अगर कम फ्लो करना है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा रखनी पड़ेगी, राइट. अगर आपको ज़्यादा करंट फ्लो करना है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम करनी पड़ेगी, ठीक है, वैसे वैसा. सो रेजिस्टर, ठीक है, फंक्शन क्या है? टू लिमिट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. सिंबल like this is a symbol of fixed type resistor. Fixed, why? Because the value of this resistor cannot be changed. The user cannot be, और हम लोग जो यूज़ करने वाले this resistor in the circuit, we cannot change the value of this resistor. So they are called as fixed type resistor. और कितने टर्मिनल होते हैं fixed type resistor को? 2 टर्मिनल होते हैं, ठीक है. Then another type is variable type of resistor. Variable, there are 3 terminals, 1 2 3. So the variable resistor we can change the value, okay, so as per our requirement. This is a movable. देखो यहाँ पे जो arrow दिखाया, this is a movable. By adjusting this, the third terminal, we can change the value of the resistance. So ये symbol है, you should know the symbol कैसे draw करना है student, and the symbols are universal. So any technical person knows कि this is a symbol of resistor, fixed type and variable type. Variable type में कितने terminals होते हैं? 3 terminals, and the value can be changed. In fixed type there are two terminals and we cannot change the value. Next, what is the unit of resistance? You already know, ohm, which is indicated by omega, right? So ohm is a unit of resistance, but resistance are expressed in higher units. So 1 kilo ohm कितना है? 1000 ohm. 1000 को means 10 raised to 3 ohm. Now make a habit of writing kilo ohm in 10 raised to 3. Okay, instead of writing 1000, we will henceforth write 10 raised to 3. So 1 kilo ohm is equals to 10 raised to 3 ohms. Then 1 mega ohm is equals to 10 raised to 6. So 1 mega ohm कितना होता है? 10 raised to 6 ohm. Okay, then next one, 1 giga ohm is 10 raised to 9 ohm. So you should know the conversion. While solving the problem, the resistance value may be given in kilo ohm, mega ohm, giga ohm. So they are the higher units. The proper unit of resistance is ohm. So it has to be converted into ohm. किलो रहेगा, किलो ओम रहेगा तो उसको ओम में कन्वर्ट करना है, या मेगा ओम रहेगा तो पहले उसको ओम में कन्वर्ट करना है, एंड देन you have to apply the formula and solve the problems, right? The proper unit is ohm. Okay, now here I have given the, आपको याद रखना है unit name giga ohm, g ohm, right? 10 raised to 9, mega ohm, capital M. See abbreviation देखो इसका क्या है? capital M है. Okay, small m किस represent milli, capital M represent mega. 10 raised to 6 ohm, किलो ओम 10 raised to 3 ohm. मिली ओम, अगर मिली ओम में है तो लोअर इन फ्रैक्शन, राइट? 10 raised to -3. माइक्रो ओम, माइक्रो कैसे लिखते देखो, म्यू लिखते, दिस इज म्यू, अ ग्रीक लेटर म्यू. माइक्रो ओम 10 raised to -6 ohm. नैनो ओम, nano and 10 raised to -9 ohm. Generally students, the resistance are expressed in higher units, not in lower units. but आपको पता होना चाहिए माइक्रो मतलब कितना होता है, 10 raised to नैनो मतलब कितना होता है. so this table is been shown to you. okay, नैनो मतलब कितना, 10 raised to -9, माइक्रो means 10 raised to -6. okay, now what is the function of resistor? Already we have seen one function, to limit the current, to drop the voltage, right?
अगर एंड टू डिवाइड द वोल्टेज, अगर आपको डिवाइड करना है वोल्टेज, सो प्रॉपर रेजिस्टेंस की वैल्यू लेना है, सो द वोल्टेज गेट डिवाइड अमंग दैट रेजिस्टेंस, राइट. सो यू शुड नो द फंक्शन वेरी वेल. द स्टेट द फंक्शन ऑफ रेजिस्टर, क्या क्या है फंक्शन? टू लिमिट द करंट, to drop the voltage and to divide the voltage, right? These are the three functions of resistor. Now let us see. यहाँ देखो Ohm's law. What is Ohm's law? Already study. V is equals to IR, right? Where V is the voltage, I is the current and R is the resistance. All the three letters are in capital. Okay. Then now let us see divide the voltage. How we divides the voltage? Yes, we have applied voltage V and the three resistance R1, R2 and R3 are connected in series. How they are connected? In series, one after the another, right? And the current I is flowing through them. The voltage across R1 is referred as V1, voltage across R2 is referred as V2, voltage across R3 is referred as V3. When the current flows, current I into R1 will give you the voltage V1, I into R2 will give the voltage as V2, and the current I into R3 gives the voltage V3. Student, remember one thing, that in series the current remains same. Okay, current is same and voltage get divided. In parallel circuit, the voltage remains same and currents gets divided. Clear है? So what is total voltage? V1 plus V2 plus V3. So this shows the function of resistor that divides the voltage. So resistance divides the voltage. The next one. Next one, resistors are of two type, fixed type and variable type. ओके हमने देखा है सिंबल, फिक्स टाइप का भी देखा और वेरिएबल टाइप का भी सिंबल देखा है. फिक्स टाइप में अगेन दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू कार्बन टाइप एंड वायर वाउंड टाइप. सी व्हाई दे आर, बिकॉज हर जगह पे एक ही रजिस्टर यूज नहीं होता है, राइट. अगर आपके लैपटॉप में हो, मेडिकल इक्विपमेंट में हो, लैब में यूज़ करना है तो अलग अलग रेजिस्टेंस हम यूज़ करते हैं. So the variable type again are two type, carbon type and wire wound type. So this is a classification of resistor. Resistor are classified into two type, fixed type and variable type. Variable fixed type में again further classified into carbon type and wire wound type. Variable type में कौन कौन से हैं? Carbon type and wire wound type. Okay, carbon type. Now carbon type एक एक type देखेंगे, उसका क्या है फंक्शन, दैट विल सी. कार्बन टाइप आर क्लासिफाइड इनटू टू, कार्बन कंपोजिशन टाइप एंड कार्बन फ्लेम टाइप. ओके, सो कार्बन टाइप में भी फर्दर क्लासिफाइड हुआ है कार्बन कंपोजिशन टाइप एंड कार्बन फ्लेम टाइप. ओके, नाउ लेट अस स्टडी ईच रेजिस्टर्स इन डिटेल. कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर, यहाँ पे एक रेजिस्टर दिखाया है आपको, राइट. दिस इज अ रेजिस्टर, राइट. यहाँ पे कुछ कलर बैंड भी दिख रहे हैं ना, ये कौन सा है? ब्राउन, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड. ओके, सो दिस इज अ कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर. उस पे ऊपर कलर बैंड भी है, अलग अलग बैंड दिख रहे हैं आपको, ब्राउन, ब्लैक, रेड एंड गोल्ड, राइट. 4 bands you can see and it is been installed on a विच वायर? एल्यूमिनियम वायर, हार्ड वायर पे ये कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टेंस फिक्स किया. सो लेट अस सी हाउ दिस कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर इज मैन्युफैक्चर्ड. कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है? सो मैन्युफैक्चर, सो दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर. सो हाउ इट इज डन? बाय मिक्सिंग द कार्बन ग्रैन्यूल्स. ग्रैन्यूल्स मतलब शक्कर जैसा, राइट, क्रिस्टल्स, small small. By mixing the carbon granule with the binding material, non-conducting, which is non-conducting, like ceramic clay, right. जब हम शेंगदाने की चिक्की बनाते तो क्या करते हैं? शेंगदाना और क्या बाइंडिंग मटेरियल होता है? गुड़ या शक्कर, जैगरी होता है ना, राइट. सिमिलरली यहाँ मेन कंपोनेंट क्या है? कार्बन ग्रैन्यूल्स. दे आर बाइंडेड विद द non-conducting material, that is ceramic clay powder to bind together, राइट. उनको अच्छे से कंबाइन किया जाता है एंड इट इज मोल्डेड इट ऑन इन अ सिलेंड्रिकल फॉर्म.
tinned copper wire is inserted at the end for connection, right? So यहाँ पे दिखा है ये tin copper wire हो सकता है या any conducting wire, aluminium wire भी हो सकता है. And the structure is shielded in a नॉन कंडक्टिंग कोटिंग. ये पूरा नॉन कंडक्टिंग ऊपर से किया जाता है और फिर बैंड उस पर कलर किए जाते हैं. सो दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हाट? कार्बन कंपोजिशन टाइप. ओके, सो कार्बन कंपोजिशन, हियर यू कैन सी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ रेजिस्टर. यहाँ पे दिख रहा है ना, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज, गोल्ड. फिर अलग यहाँ पे क्या दिख रहा है? ब्राउन नहीं, येलो, ब्राउन नहीं, ब्राउन, रेड और गोल्ड, राइट? अलग अलग है. यहाँ पे है ब्लू, ग्रे एंड रेड एंड गोल्ड, राइट? लास्ट वाला नॉर्मली तो गोल्ड ही दिखाते. ओके, सो दीज आर ऑल कार्बन कंपोजिशन रेजिस्टर. देन देर आर कार्बन कंपोजिशन अलग वेटेज में भी आते, पावर रेटिंग अलग आती हैं. तो साइजेस से, फ्रॉम द साइज ऑफ द रेजिस्टर स्टूडेंट वी कम टू नो कि इसकी पावर रेटिंग क्या होगी. पावर इज एक्सप्रेस इन वैट. वैट में एक्सप्रेस करते हैं ना, आपने 10th में स्टडी किया है, राइट? सो 1/4 वैट. ये देखो इसका थिकनेस, साइज देखो कितना छोटा है. तो देख के ही पता चलता है कि इसकी पावर रेटिंग कितनी है, क्वार्टर वैट है. ओके, द नेक्स्ट वन इज हाफ वैट, 1 वैट, और ये 5 वैट तक रेजिस्टर्स अवेलेबल है. जहाँ पे आपको हाइयर पावर हैंडलिंग करना होता है वहाँ पे ये 5 वैट का हम क्या करते हैं, रेजिस्टर यूज करते हैं. सो नॉट एवरीवेयर द सेम रेजिस्टर इज यूज्ड. आपको स्पेसिफिकेशन भी देखने होते हैं, भाई ये रेजिस्टर चलेगा नहीं चलेगा, इसका पावर रेटिंग नहीं तो क्या हो जाएगा, डैमेज होगा, ज़्यादा पावर होगा तो, राइट? सो ज़्यादा पावर के लिए वो टाइप के रेजिस्टर यूज करने हैं, राइट? नाउ लेट अस सी हाउ टू फाइंड द वैल्यू गिवन द कलर बैंड. अगर कलर बैंड दिया है तो कैसे हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, राइट? सो यह कलर्स दिए हैं, राइट? यू कैन सी ओवर हियर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे. ये क्या नवरात्रि के कलर्स नहीं है स्टूडेंट्स, ये द ईच कलर हैज़ अ फिक्स डिजिट, राइट? ओ फिक्स्ड वैल्यू इज देयर एंड एज पर द वैल्यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट रेजिस्टेंस. तो पहले कौन सा है, तो लेट अस हाउ टू रिमेंबर दिस, राइट? ये कलर कैसे याद रखे ना, 10 कलर. तो पहला है बी रॉय. सो वाव इसे बी रॉय. किधर का, ग्रेट ब्रिटेन का. कहाँ का था, ग्रेट ब्रिटेन. क्या थी उसकी, वेरी गुड वाइफ. वाइफ कैसे थी, वेरी गुड, वेरी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स. ओके, सो दिस इज बी रॉय of Great Britain having very good wife wearing gold and silver ornaments. Clear है आपको स्टूडेंट्स? सो लेट अस सी फर्स्ट वैल्यू. फर्स्ट क्या है, कौन सा कलर है, फर्स्ट ब्लैक, ब्लैक. फिर ब्राउन, ब्राउन. देन थर्ड कलर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वॉयलेट, ग्रे, gold, white, gold and silver. Okay, तो फर्स्ट बैंड, फर्स्ट डिजिट. अब यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या है, ब्राउन है, तो ब्राउन का वैल्यू कितना है, 1. ओके, सेकेंड डिजिट मल्टीप्लायर एंड फोर्थ इज टॉलरेंस. ये देखो आप अगर केयरफुली देखेंगे 3 बैंड में स्पेसिंग सेम है, बट जो फोर्थ बैंड है उसमें स्पेसिंग ज़्यादा है. यस और नो? सो जब भी ये लास्ट वाला, उसके अपोजिट से आपको बैंड, फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट आइडेंटिफाई करना है. ओके, जहाँ पे ये जो लास्ट बैंड है थोड़ा दूर है, तो फ्रॉम अपोजिट साइड यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग द कलर्स. तो ब्राउन, ब्लैक, येलो, नॉट द अदर वे, राइट? येलो, ऑरेंज, ब्लैक, ब्राउन ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स? सो लेट अस सी मल्टीप्लायर. सो ब्लैक का वैल्यू कितना है, 0, ब्राउन 1, रेड 2, 3. सो दिस कलर आर असाइन दिस डिजिट. ओके, एंड इट इज अगेन यूनिवर्सल. ऑरेंज को क्या है, 3, येलो 4, ग्रीन का वैल्यू 5, ब्लू 6, वॉयलेट 7, ग्रे 8, वाइट 9, gold 10 raised to
-1 या -1 and 10 raised to -2. ओके, आई रिपीट, बी रॉय कहाँ का? ग्रेट ब्रिटेन। क्या थी उसकी? वेरी गुड वाइफ। क्या कर रही थी वो? शी वॉज वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। आएगा, याद रखेगा, स्टार्ट विथ 0 to 9। और गोल्ड और सिल्वर का क्या है? 10 रेस टू -2 एंड 10 रेस टू -1 गोल्ड का है, एंड सिल्वर का कितना है? 10 रेस टू -2। अंडरस्टूड? नाउ लेट अस फाइंड द वैल्यू। चलो, पहला बैंड, पहले तो 4 बैंड है, गोल्ड थोड़ा दूर है, तो पहला बैंड कौन सा होगा आपका? ब्राउन। ब्राउन का वैल्यू कितना है? 1। सेकेंड क्या है? ब्लैक। ब्लैक का वैल्यू कितना है? 0। नाउ जो थर्ड बैंड है, दैट विल बी इन द पावर ऑफ 10 रेस टू इनटू 10 रेस टू, पहला 10 लिखने का। और अभी कलर कौन सा? ये आई थिंक ये रेड है ना? हाँ, रेड है, तो रेड का वैल्यू कितना है? 2। अंडरस्टूड? तो 10 इंटू 10 रेस टू 2। नाउ जो टॉलरेंस है, टॉलरेंस इज ऑलवेज रिटन इन प्लस एंड माइनस, राइट? प्लस माइनस दैट वैल्यू। तो फोर्थ बैंड यहाँ पे टॉलरेंस दिया, लास्ट कॉलम में टॉलरेंस दिया है। वी विल कॉन्सेंट्रेट ऑन टॉलरेंस ओनली ऑफ 3 कलर्स, गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। गोल्ड रहेगा तो कितना टॉलरेंस है? ±5%। अगर सिल्वर है तो कितना है? ±10%। एंड नो कलर है तो कितना है? ±20%। तो यहाँ हमारे पिक्चर में जो रेजिस्टेंस दिया है फोर्थ बैंड, वो कौन सा है? टॉलरेंस गोल्ड है, तो उसका टॉलरेंस कितना लिखेंगे? ±5%। ±5% मतलब क्या होगा? जो वैल्यू है यहाँ पे, इसका परसेंटेज निकालेंगे 5%, सो प्लस ऑफ दैट 5% एंड माइनस ऑफ दैट 5%, तो वो वही रेंज में रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सो देर विल बी नो प्रॉब्लम इफ़ इट इज़ विद इन दैट रेंज। बट अगर वो रेंज के बाहर है तो क्या होगा? वो रेंज के बाहर है तो क्या हो जाएगा? ओके, तो क्या हो जाएगा? बराबर करंट फ्लो नहीं होगा, आपका सर्किट बंद हो जाएगा। सो अभी यहाँ पे कितना आया इसका वैल्यू? सो लेट अस सी इसका वैल्यू कितना आ रहा है। ओके, इट इज 1000 ओहम ±5%, ±5%। 1000 can be better written as 1 kilo ohm ±5%। अंडरस्टूड? तो ये ऐसे आपको फाइंड करना है रेजिस्टेंस का वैल्यू। ओके, गिवन द कलर कोड। अगर कलर कोड दिया है फ्रॉम द टेबल, आपको याद रखना पड़ेगा, बी रॉय कहाँ का? ग्रेट ब्रिटेन का। हैड वेरी गुड वाइफ wearing gold and silver ornaments starting from 0। एंड टॉलरेंस के लिए कौन से कलर लेते हैं हम लोग? गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। ओके, गोल्ड रहेगा तो कितना है टॉलरेंस? ±5%। सिल्वर रहेगा तो कितना रहेगा? ±10%। एंड नो कलर रहेगा तो ±20%। वी विल restrict ourselves फॉर दिस टॉलरेंट बैंड ओनली। ओके, विल अदर कलर्स के भी है, अगर ब्राउन रहेगा तो ±1 है, यू कैन सी इन द टेबल, राइट? बट वी विल नॉट डू ऑल दैट, वी विल restrict ourselves ओनली टू टॉलरेंस ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। क्लियर? चलो, अभी इसका वैल्यू फाइंड करना है आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार्बन रेजिस्टर बाय यूजिंग द कलर कोड मेथड। क्या दिया है? ब्राउन, ब्लैक, येलो, गोल्ड। तो कहाँ से हमने स्टार्ट किया? ब्राउन, ब्लैक, येलो एंड गोल्ड। तो अपोजिट गोल्ड, टॉलरेंस फोर्थ है, थोड़ा लंबा है, तो उसके अपोजिट से स्टार्ट। तो ब्राउन का वैल्यू कितना है? 1। ओके, हाँ, तो ब्राउन, ब्लैक, येलो, गोल्ड। ब्राउन 1, ब्लैक 0, येलो 4 है, तो वो कैसे लिखेंगे हम? 10 टू द पावर हमेशा लिखेंगे। ओके, ±5%। तो अभी ये कैन आई राइट दिस इन बेटर वे? यस, 10। हाँ, तो ये हो गया 10,000, राइट? इन ±5%, बट आई सेड वी ऑलवेज राइट इन हायर वैल्यू, दैट इज किलो मेगा। तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? यस, हम इसको किलो में भी लिख सकते हैं, 10⁻³ राइट? किलो मतलब तो कितना किलो हो जाएगा ये?
100 into 10 raised to 3 ohm plus minus 5% या 100 किलो ओम प्लस माइनस 5%. ओके, नॉट नेसेसरी कि आपको ये स्टेप्स करने ही हैं. यू आर वेरी गुड इन मैथ्स, तो डायरेक्टली आप ये यहाँ का एक ज़ीरो यहाँ पे शिफ्ट करके 100 किलो ओम प्लस माइनस 5% लिखना है. Student, there is a vast difference between plus minus 5 and plus minus 5%. परसेंट का मीनिंग इसका वैल्यू का 5% निकालेंगे and then we will add and subtract, right? That will give us the lower limit of that resistance and higher limit of that resistance. आएगा. चलो और एक एग्जांपल ले. अभी इसका बताओ. रेड, वॉयलेट, रेड, गोल्ड. ओके, रेड, वॉयलेट, रेड, गोल्ड. तो फर्स्ट रेड है, रेड का वैल्यू कितना है 2, वॉयलेट का 7 एंड द थर्ड कलर इज ऑलवेज रिटर्न इनटू द पावर ऑफ 10 रेज टू कितना लिखेंगे 2. और फोर्थ इज द टॉलरेंस दैट इज प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%. ठीक है, तो 10 रेज टू 00 ओम प्लस माइनस 5%. कैन वी राइट दिस इन बेटर वे? यस, हम 1000 में कन्वर्ट कर सकते, किलो में कन्वर्ट कर सकते ना. तो ये क्या आएगा 2.7 किलो ओम्स प्लस माइनस 5%. ऐसा भी लिखा तो राइट है, बट वी ऑलवेज राइट इन किलो मेगा ओम, राइट? So this is a better way of writing the resistance value 2.5 kilo ohm plus minus 5%. ठीक है, 2.7 kilo ohm plus minus 5%. Student, you should always write the unit. Half marks are reserved for the unit, proper unit. Unit के बिना तो कुछ है ही नहीं, right? नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट करो. रेड, रेड, गोल्ड, गोल्ड. अभी 2 बार गोल्ड है, तो ये गोल्ड कौन सा है 10 रेज टू 3 और लास्ट वाला टॉलरेंस वाला है. क्लियर है? तो लेट अस फाइंड रेड, रेड, गोल्ड, गोल्ड. 2 इंटू 10 रेज टू गोल्ड का वैल्यू क्या है 10 रेज टू माइनस 1 प्लस माइनस 5. अब इसको 10 रेज टू माइनस 1 नहीं लिखना है, राइट? अब ये से कि मल्टीपल ऑफ होता है, नहीं, डायरेक्टली इसका वैल्यू क्या है गोल्ड का 10 रेज टू माइनस 1 प्लस माइनस 5%. सो डिवाइड बाय 10, तो क्या आएगा ओम प्लस माइनस 22 डिवाइडेड बाय 10 प्लस माइनस 5%. 2.2 ohm plus minus 5%. Understood? So we get 2.2 ohms plus minus 5%. Okay, the next one. Now find the value of the carbon resistance by using color code method green, black, green, silver. तो अभी करते हैं ग्रीन, ब्लैक, ग्रीन, सिल्वर, राइट? ग्रीन मतलब कितना है, क्या करेंगे अभी बी रॉय. क्या बी रॉय? कहाँ का ग्रेट ब्रिटेन. ग्रेट ब्रिटेन हैड क्या थी वेरी गुड वाइफ एंड व्हाट शी वाज वेयरिंग गोल्ड एंड सिल्वर. तो पहला कौन सा है ब्लैक. तो ब्लैक का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5. तो ग्रीन का क्या है वैल्यू 5. ब्लैक का कितना है 0. ग्रीन का कितना है, बट थर्ड कलर ऑलवेज वी राइट इन द पावर ऑफ 10. सो 10 रेज टू 5 प्लस माइनस ये फोर्थ वाला क्या है टॉलरेंस. तो प्लस माइनस कितना है 10%. ठीक है, 10%. अंडरस्टूड? नाउ यू कैन अगेन 6 कर सकते हो ना. 5 into I can write this in a better way 10 raised to 6 plus minus 10%. What is 10 raised to 6? 10 raised to 6 is mega ohm plus minus 10%. Got the answer? So this way you can just okay find the value when you know the color code. Okay, चलो फटाफट से आप भी कर लो. ओके, सी आया 10 रेज टू 6 मेगा ओहम.
ओके नेक्स्ट वन ग्रीन ब्लैक ब्लैक सिल्वर, ये पर्पसली दिया है। अभी आप लोग करो क्या आएगा इसका फटाफट। सो ग्रीन ग्रीन 5, ब्लैक 0, 10 रेस टू 0 प्लस माइनस 10%, एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। सो ये क्या आएगा 50 इंटू 1 ओम प्लस माइनस 10%, तो क्या आएगा 50 ओम प्लस माइनस 10%। सो we are done all the type of problems of to find the value of carbon resistance given the color code. Okay, 50 into 10 raised to 10%. Okay, now here I have shown how to find the percentage. तो 50 into 10%, 10% मतलब क्या 10 divided by 100, तो कितना आता है 0.1, तो कितना हुआ 10% 5, तो 5, तो 50 ओम प्लस माइनस 5, राइट, प्लस माइनस 5, तो क्या होगा, तो दिस रजिस्टर कैन वर्क वेरी वेल, कहाँ कहाँ से कहाँ वर्क करेगा अच्छे से, 45 ओम टू 55 ओम, क्योंकि क्या होता है हम टीवी दिन रात चलाते तो रेजिस्टेंस का वैल्यू कम कम ज़्यादा हो जाता है, राइट, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, हीट होता है। सो दैट मीन्स तो विद इन दिस लिमिट इट विल वर्क फाइन, राइट। अगर इसके लिमिट के बाहर उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हुई, it will stop allowing the current to flow and your circuit will shut down. Okay, स्विच बंद हो जाएगा, है ना। so this is called as limit. Okay, that is meaning of tolerance, समझ में आया। it is not plus minus 10, it is plus minus 10%, that is very big difference between plus minus 10 and plus minus 10%। अभी समझा। even though the value is 50, it will work very fine between 45 ohm to 55 ohm। क्लियर है। तो ये आपके लिए दिए होमवर्क के लिए। so you have to solve this given the resistance and tolerance for the following resistance with the color strip। तो आप ये करके ला सकते हो, ठीक है। do the practice। okay। okay student।